A very good morning to all of my dear students. Today we are going to revise chapter 9, The Bond of Love of Beehive. So students, this story is a story of love and affection between a human being and an animal. Once the narrator finds an orphan sloth bear and gives him to his wife. As time passes, the narrator's wife and the baby bear share a great bond of love and affection. The bear grows big and needs an open and big space to live, so they decide to give him to a zoo, but both of them cannot bear the separation. They worry and do not eat food properly. Hence, the bear is brought back to the narrator's house and both become happy. Now, students, we are going to discuss the characters which are used in this chapter. So, first is the narrator. The narrator is the writer of the story who found a sloth bear and gifted him to his wife. Next, narrator's wife. She was a kind woman who loved the bear a lot and treated him like her child. Next, Bruno, a sloth bear whom the narrator found and gifted to his wife. Next, the curator, a zookeeper who took care of Bruno at the zoo and informed the narrator's wife about its condition. Next, the superintendent. Superintendent, a kind-hearted man who allowed the narrator's wife to take Bruno with her. Now, students, we are going to discuss the summary of this chapter. So, first point is like this. The narrator finds an orphan bear cub. The narrator found a bear cub by chance when he and his friends were passing through the fields of sugarcane near Mysore. People were driving away the wild pigs from their fields by shooting at them. Then they spotted a sloth bear. His friend shot towards the bear and it died. After the sloth bear died, her cub, which was riding on her back, ran around her dead body, making a sad noise. The narrator caught the bear cub and gifted him to his wife. The narrator's wife felt so happy on seeing the bear cub and named him Bruno. She treated him as her own child and took good care of him. She gave him many things to eat and drink. He ate porridge, vegetable, fruits, nuts, meat, rice, eggs, etc. and drank tea, milk, beer and coffee. He spent his time in playing with the pet dog of the narrator and his tenant's children. He slept in their bed. The narrator founds a bear cub by chance when he and his friends were passing through the fields of sugarcane. जो नरेटर है उसने बियर कप को वो मिला, लकीली उससे मिला व्हेन ही एंड हिज फ्रेंड, जब वो और उसका जो फ्रेंड थे वर पासिंग गुजर रहे थे वो एक शुगर केन के फील्ड से नियर मैसूर में. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, जो लोग थे वो जो वाइल्ड जो जंगली जो पिग्स थे उन्हें भगा रहे थे अपने खेतों से, उन्हें शूट करते हुए. देन दे स्पॉटेड अ स्लोथ बियर, उसके बाद उन्होंने एक स्लोथ बियर को भगाया. हिज फ्रेंड शूट टुवर्ड्स द बियर, और उसके फ्रेंड ने इसे शूट किया और यह मर गया. आफ्टर द स्लोथ बियर डाइड, जब जो स्लोथ बियर है वो मरी, हर कब मरा, हर कब उसका जो बेबी था विच वॉज राइडिंग ऑन हर बैक, जो कि उसकी पीठ पर था, रन अराउंड हर डेड बॉडी मेकिंग अ सैड नॉइज, वो
उसकी जो डेड बॉडी थी उससे वो उतरा और सैड नॉइज शोर मचाने लगा। द नरेटर कॉट द बियर कप, नरेटर जो थे वो बियर कप को ले आए और उसने अपनी वाइफ को एज ए गिफ्ट के रूप में दिया। द नरेटर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी, नरेटर की वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हुई है देखकर। एंड नेम्ड हिम, और उसने उसका नेम क्या रखा, ब्रूनो। शी ट्रीटेड हिम एज हर ओन चाइल्ड, वह अपने बच्चे की तरह उसे ट्रीट करती। एंड टुक गुड केयर ऑफ हिम, और उसकी अच्छी देखभाल करती। शी गेव हिम मैनी थिंग्स, वो उसे काफ़ी चीज़ें देती उसे खाने के लिए पीने के लिए। ही एट, वो खाता। पोरीज, दलिया, वेजिटेबल, नट्स, मीट, राइस, एग्स एट्सेट्रा, और वो पीता था मिल्क, बियर, कॉफ़ी एट्सेट्रा। ही स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग विद द पेट डॉग, और वो अपना जो बचा हुआ जो समय था वो व्यतीत करता खेलने में नरेटर के पेट डॉग के साथ और उसके जो किराएदार के जो बच्चे थे उनके साथ में। ही स्लैप्ड इन दियर बेड्स, और वो उनके बेड्स पर ही सोता। नेक्स्ट इज इंसिडेंट्स विद ब्रूनो, जो ब्रूनो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए वो क्या थे। वंस एन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द हाउस, द नरेटर हैड पुट डाउन अ रेड पॉइजन इन द लाइब्रेरी एंड ब्रूनो एट इट and suffered a stroke of paralysis. He dragged himself to the narrator's wife. They took him to the veterinary doctor and he recovered after some time. Another time, Bruno drank 1 gallon of old engine oil, but it had no ill effect on him. एक बार जो एक एक्सीडेंट हुआ उनके घर पर इंसिडेंट हुआ, द नरेटर हैड पुट, नरेटर ने जो पॉइजन था लाइब्रेरी में रखा रेड को भगाने वाला, एंड ब्रूनो एट इट, और ब्रूनो ने इस पॉइजन को खा लिया। और वो उसने किससे सफ़र किया, पैरालिसिस से। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, वो धीरे से अपने आप को खींचता हुआ नरेटर की वाइफ के पास लेके गया। और दे मीन्स उसकी जो वाइफ थी और जो नरेटर था वो दोनों उसे वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेके गए और वो जल्दी ही ठीक हुआ। अनदर टाइम, दूसरे टाइम में जो ब्रूनो है उसने 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल को पी लिया था और बट इसका कोई भी इल इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। नेक्स्ट वन इज बाबा, न्यू नेम ऑफ ब्रूनो, ब्रूनो का जो न्यू नेम दिया गया वो क्या था, बाबा। एज ब्रूनो ग्रू ही लर्नड सम ट्रिक्स एंड एट द नरेटर्स वाइफ्स कमांड he could perform them. He could hold a stick like a gun when she said wrestle or box. One did the same. She changed his name to Baba when he grew up. Baba had to be changed most of the time because of the children of narrators' tenants. अब ब्रूनो ग्रू, ब्रूनो जब बड़ा हुआ, ही लर्न सम ट्रिक्स, उसे कुछ ट्रिक्स सीखी जैसे कि नरेटर की वाइफ उसे कमांड देती थी। ही कुड परफॉर्म, वो वैसा ही परफॉर्म कर सकता था। ही कुड होल्ड अ स्टिक, वो एक स्टिक को होल्ड करता मानो कि वो एक गन की तरह। व्हेन शी सेड रेसल, जब वो कुश्ती करने के लिए कहती तो वो ऐसा ही करता। शी चेंज हिज नेम, उसने उसका नेम ब्रूनो से बाबा रखा। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ। बाबा हैड टू बी चेन, बाबा को चेन में रखा जाता काफ़ी टाइम तक बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वहाँ पे जो चिल्ड्रन थे नरेटर्स के टेनेंट्स के वो खेलते रहते थे। एज टाइम पास, जैसे ही समय गुजरा, बाबा ग्रू इन साइज, बाबा साइज में बड़ा हुआ। एंड इक्वल द 2 डॉग इन हाइट, और किसके बराबर, 2 डॉग के बराबर हाइट में। सो द नरेटर एंड हिज फ्रेंड, इसलिए नरेटर और उसकी फ्रेंड ने नरेटर की वाइफ को एडवाइस दी कि उसे कहाँ भेजा जाए, जू में, मैसूर में, क्योंकि ही नीडेड अ बिगर एंड ओपन स्पेस, उसको अब ज़रूरत थी एक बड़े स्पेस की। शी वॉज नॉट रेडी, पहले तो वो रेडी नहीं थी उसे भेजने के लिए, बट बाद में वो धीरे धीरे एग्री हो गई और उसे जू में भेजा गया। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑन नरेटर्स वाइफ एंड बाबा, क्या इफेक्ट पड़ा सेपरेशन का नरेटर की वाइफ और बाबा पर। द नरेटर्स वाइफ वॉज इन ग्रीफ फॉर वीक्स आफ्टर बाबा लेफ्ट। शी रोट अ लेटर टू द क्यूरेटर,
of the Jew to know about Baba. The curator replied that he was fretting and not eating food. The narrator tried to keep her away from the Jew for about 3 months, but after knowing Baba's condition, she decided to meet him. जो नरेटर्स की वाइफ और बाबा जब अलग हुए तो उन पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। द नरेटर्स की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त कर रही थी, दुख फील कर रही थी कई वीक से आफ्टर बाबा लेफ्ट, जब से बाबा गया था। शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा क्यूरेटर मीन्स प्रबंधक को जू के टू नो अबाउट बाबा, बाबा की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए। द क्यूरेटर रिप्लाइड दैट ही वॉज फ्रेटिंग, और क्यूरेटर ने रिप्लाई किया कि वो वीक फील कर रहा है एंड नॉट ईटिंग फूड, और ना ही उसने खाना खाया है। द नरेटर ट्राई टू कीप हर अवे फ्रॉम द जू, जो नरेटर है वो अपनी वाइफ को उसने काफ़ी टाइम तक तो जू से दूर रखा, लगभग 3 मंथ्स तक। बट आफ्टर नोइंग, किंतु जब उसने जाना कि बाबा की कंडीशन बेकार है तो उसने डिसाइड किया कि वह उससे मिलेगी। नेक्स्ट इज द यूनियन ऑफ द नरेटर्स वाइफ एंड बाबा। द नरेटर टुक हिज वाइफ टू द जू। सम ऑफ हर फ्रेंड्स टोल्ड हर दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, बट व्हेन शी वेंट टू द जू, बाबा रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस and became very happy. They sat together for 3 hours. She gave him food. She asked the curator to send Baba with her, but he was helpless and suggested her to ask the superintendent for that. जो नरेटर की टुक हिज वाइफ, नरेटर अपनी वाइफ को जू में लेके गया। सम ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके कुछ जो फ्रेंड थी, टोल्ड हर, उनसे बताया कि जो बाबा है वो उसे नहीं पहचान पाएगा। बट व्हेन शी वेंट टू द जू, बट जैसे ही वो जू में गई, बाबा रिकॉग्नाइज हर, बाबा ने उसे पहचान लिया एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और वह उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। दे सैट टुगेदर फॉर 3 hours, वो लगभग 3 घंटे तक साथ में रहे। शी गेव हिम फूड, उसने उसे खाना दिया। शी आज में रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की क्यूरेटर प्रबंधक से कि बाबा को उसके साथ भेज दे। बट ही वॉज हेल्पलेस, किंतु जो क्यूरेटर था वो हेल्पलेस था और उसने सजेस्ट किया कि वो किसकी परमिशन ले, वहाँ के सुपरिटेंडेंट की। नेक्स्ट इज बाबा रिटर्न्स होम हैप्पीली। बाबा जो घर पहुँचा बहुत खुशी से। द सुपरिटेंडेंट अलाउ हर टू take Baba and he was hoisted on the top of the narrator's car. At home, a 20 feet long and 15 feet wide island was made for him. A wooden box was kept for Baba to sleep. He was happy to be at home again. The narrator's wife and Baba spent hours sitting there. जो सुपरिटेंडेंट था उसने उसे अलाउ किया कि बाबा को अपने साथ लेके जा सकते हैं, एंड ही वॉज होस्टेड, और उसे रखा गया नरेटर की कार के टॉप पर। एट होम, घर पर, 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबी और 15 फीट जो चौड़ा था, जो आइलैंड था वो उसके लिए बनाया गया। अ वुडन बॉक्स वॉज केप्ट फॉर बाबा टू स्लीप, एक वुडन बॉक्स बनाया गया बाबा के लिए सोने के लिए। ही वॉज हैप्पी टू बी एट होम अगेन, वह बहुत खुश था घर पर आने के लिए। द नरेटर्स वाइफ एंड बाबा स्पेंड आवर सिटिंग देयर, नरेटर की वाइफ और जो बाबा था वो कई घंटे स्पेंड करते थे एक साथ बैठकर। नेक्स्ट इज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ एनिमल। द अफेक्शन एंड लव बिटवीन द नरेटर्स वाइफ एंड बाबा, द स्लॉथ बियर वॉज अ सिंबल ऑफ ट्रू लव। The story shows that animals also feel love and express their feelings to them who love them. Baba showed so many qualities like that of humans, like love, affection, care and loyalty, and shared a bond of love with the narrator's wife. जो अफेक्शन है और जो लव है बिटवीन जो नरेटर की वाइफ के और बाबा के बीच में था, वो जो सिंबल ऑफ ट्रू लव, जो कि एक सिंबल है किसका, वास्तविक लव का। द स्टोरी शोज़, ये जो स्टोरी है ये शो करती है कि जो एनिमल्स हैं वो भी फील करते हैं लव को और एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को टू देम, उन लोगों के साथ में जो उनसे लव करते हैं।
बाबा में भी काफ़ी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं ह्यूमंस की तरह, लाइक लव, अफेक्शन, केयर एंड लॉयल्टी एंड शेयर्ड अ बॉन्ड ऑफ लव। और उसने शेयर किया एक बॉन्ड ऑफ लव किसके प्रति? वाइफ के, नरेटर की वाइफ के प्रति। Now students, we are going to discuss some sentences which are highlights this chapter. So first is the narrator finds an orphan bear cub while passing through sugarcane field in Mysore. He brings that bear cub to his home and gifts it to his wife. His wife treats the bear with love and affection. She named the cub Bruno. Accidentally, he eats poison one day and suffers a stroke of paralysis. He is taken to the vet doctor and gets well after treatment. Once, he drank a gallon of old engine oil, but there was no ill effect on him. Next, the narrator's wives love him a lot and helps him learn some tricks, and he performs on her command. When Bruno grows big, the narrator's wife changes his name to Baba. He was sent to zoo as he was too big to be kept at home. The narrator's wife and Bruno became sad and did not eat food for many days. The narrator's wife visits the zoo to meet Bruno. Bruno recognizes her at once at the zoo, even after 3 months of separation, and becomes happy. Both of them sit together for hours. She gives him his favorite food. The narrator's wife cries and requests the superintendent to allow her to take Bruno with her. He allows her and makes a special argument for transporting Bruno to their home. Bruno comes home and they spend a lot of time together and very happy. So students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So student, watch and listen this video very carefully. Thank you so much.